Hello everyone, this is Nipun Bhatia. This is Colin. This is Rahul. And welcome to Target Publication. In today's session, we are going to discuss about the new syllabus of Maharashtra State Board 10th Standard. Now today, the main motto is to discuss about science and technology. So we are going to cover science and technology part 1 and science and technology part 2. In all, science and technology covers 100 marks of paper. Let me add one more thing. Written exam would be of 80 marks, out of which 40 marks would be for Science and Technology Part 1 and remaining 40 marks would be for Science and Technology Part 2. The remaining 20 marks are equally distributed into practicals and a written test which will be there at the end of first term. So to sum up, there will be a joint test which will be there for 10 marks, there will be practicals for 10 marks and there will be 40 marks written test for 40 marks each. So all in all, this 80 marks written paper and 20 marks practical and journal sums up and gives a 100 marks of science and technology paper. Now let us see what all are the types of questions which are covered in our new syllabus. Now the first type of question is objective type of question, which usually comes for 10 marks. The second type of question is very short answer type of question, which again comes for 10 marks. The third type of question is short answer type of question, which comes for 15 marks. And the fourth type of question is long answer type question, which comes for 5 marks. So in total, it makes a 40 marks of written paper for Science and Technology Part 1 and 40 marks same as for Science and Technology Part 2. Now let me elaborate more on the first topic or the first question, that is objective based question. Now there is a misconception कि objective based बोल दिया तो हम लोग को सिर्फ fill in the blanks आएगा. नहीं, objective based में भी there are different types of questions which are included. So let us see in detail. The first type of question is fill in the blanks. Now fill in the blanks is segregated into two parts. The first part is single blank question which comes for 1 mark and the second thing is paragraph based question which comes for 3 marks. अभी ध्यान दो, ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड नहीं होगा, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में जाएगा. सो मतलब ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही टाइप होगा, दैट इज आवर सिंगल ब्लैंक question which comes for 1 mark. Now the second type of question which is there in our objective based question is find the odd man out. मतलब 4 हम लोग को things दिया रहेगा, उसमें से हम लोग को odd man out find करना है and we have to write our final answer. The third type of question which comes is correlation. Correlation is also called as complete the analogy. इसका मतलब क्या, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर रहेगा, सेकंड क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर उसका आंसर क्या है. अभी ये कैसा रहेगा, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर बोला होगा रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज तो उसका आंसर दिया होगा अगर R1 + R2 + R3, तो नेक्स्ट दिया रहेगा रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. मतलब पहले क्वेश्चन में इसमें क्या किया था, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज बोला तो उसका फॉर्मूला दे दिया, तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल बोला तो पैरेलल का क्या देना पड़ेगा, फॉर्मूला. तो मतलब ये हिंट कहां से मिला, पहले के आंसर से हम लोग को हिंट मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. So this is the way how correlation works. Now after that, the next part in our objective type is find differences. अभी find differences क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोग इसको mix करते हैं with differentiate between और distinguish between. अभी this is far different from distinguish between. Find difference का मतलब क्या रहता है, it comes for 1 mark. अभी इसमें क्या होगा, हम लोग को स्पेसिफिकली एक डिफरेंस के बारे में बोला जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला होगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन द करेक्टिव लेंस ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मतलब इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करो, करेक्टिव लेंस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करो. सो हम लोग का आंसर हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन द करेक्टिव लेंस ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इज वन यूजेस कॉन्केव लेंस एंड अदर यूजेस कॉन्वेक्स लेंस. तो एक स्टेटमेंट में हम लोग का खत्म हो गया आंसर. सो दिस गिव्स अस 1 mark. The next type of question which is included is our match the following. Match the following तो हम लोग को पहले से ही पता है, एक कॉलम रहता है, सेकंड कॉलम रहता है और हम लोग को करेक्ट मैच करना रहता है. अभी इसमें there is a suggestion कि हम लोग को match the following डायरेक्ट इधर उधर मैच नहीं करना चाहिए. अगर पहला कॉलम में दिया रहेगा 1 2 3, सेकंड कॉलम में दिया रहेगा A B C, तो हम लोग को आंसर लिखना चाहिए लाइक 1 का A 2 का B, ऐसे टाइप में हम लोग को प्रेजेंट करना चाहिए. सो दिस इज अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर इन विच अ पेपर इज प्रेजेंटेड. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज ट्रू एंड फॉल्स. अभी ट्रू एंड फॉल्स रहता है, दैट इज राइट एंड रॉन्ग. ट्रू और फॉल्स और राइट एंड रॉन्ग एक ही हो गया. इसमें क्या होना चाहिए, जो स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है उसका आंसर तो आ जाएगा ट्रू, बट जो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है उसका
फॉल्स आएगा, लेकिन उसके साथ हम लोग को उसका करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि ये फॉल्स क्यों है और इसका करेक्ट आंसर क्या है. Now after that we have next thing, that is name the following or name any chemical reaction. इसमें नॉर्मली हम लोग को केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है साइंस पेपर 1 में, जिसमें हम लोग को क्या बोलते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन दे देते हैं और हमको बोलते हैं कि बताओ इसका केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन, वेदर इट इज रिडक्शन, वेदर इट इज रेडॉक्स रिएक्शन. तो पूरा का पूरा हम लोग को बताना पड़ता है. कॉम्बिनेशन हो सकता है, डीकम्पोज हो सकता है, एनी टाइप ऑफ रिएक्शन इट कैन बी. द नेक्स्ट टाइप इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी. अभी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 पार्ट में हम लोग को सैग्रीगेट कर दिया है. द फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स, द सेकंड पार्ट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज. ऑफ कोर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा कि दिस इज प्रैक्टिकल बेस्ड, दिस इज एक्टिविटी बेस्ड. हम लोग को खुद पहचानना है कौन सा एक्टिविटी बेस्ड है, कौन सा प्रैक्टिकल बेस्ड है. नाउ दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर टेक्स्ट ओनली, मतलब टेक्स्ट में ही हमारे पास एक्टिविटी है, टेक्स्ट में ही हमारे पास प्रैक्टिकल है, उसी से अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन आएगा और उसमें हम लोग को अपना करेक्ट ऑप्शन लिख के अपना करेक्ट आंसर लिखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो यही सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड होंगे इन आवर ऑब्जेक्टिव टाइप. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट राहुल सर टू एलैबोरेट मोर ऑन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो या, Thank you, Nipun sir. Question number 2 would be of 10 marks. Now, here we will have 7 sub-questions, out of which we are supposed to attempt only 5 questions. That means each question is going to carry 2 marks. Now, let us discuss which type of questions would be asked in this question number 2. First one would be solve numerical problems. अभी यहाँ पर अगर हम लोग 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक देखें, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में हम लोग को जो भी चैप्टर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेस्ड है. मोस्टली उस पे हम लोग को फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं. ना आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस कि हम लोग को अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में सेग्रीगेट हो जाते हैं. एक आते हैं 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल और आते हैं फिर 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क्स न्यूमेरिकल एंड 3 मार्क्स न्यूमेरिकल? जो 2 मार्क्स का हम लोग को न्यूमेरिकल आएगा, मोस्टली ये न्यूमेरिकल विल बी बेस्ड ऑन अ सिंगल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहेगा. अभी न्यूमेरिकल्स जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस सॉल्व करने में भी एक पैटर्न है. जैसे सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना पड़ता है, फिर टू फाइंड लिखना पड़ता है, फिर सॉल्यूशन एंड देन फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट. सो दिस इज द करेक्ट पैटर्न इन विच वी शुड फॉलो आवर न्यूमेरिकल्स. उसके बाद 2 मार्क्स में मैंने जैसे बोला कि एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आ जाएगा, वेयर एज इफ आई एम गोइंग टू जंप टू 3 मार्क्स न्यूमेरिकल, इसमें क्या होगा, इसमें 2 फॉर्मूलाज एक साथ क्लब कर देंगे. तो मतलब एक ही न्यूमेरिकल में 2 फॉर्मूला आ रहे हैं और 2 चीज हम लोग को पूछा है, या तो एक ही चीज पूछा है लेकिन वो एक ही चीज का आंसर हम लोग को आ रहा है बाय क्लबिंग 2 formulas. So this is our 3 marks numerical. Right. Next type of questions would be write notes. तो यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट दिया रहेगा जिसके ऊपर हम लोग को एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो अभी यहाँ पर हम लोग को 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay. राइट. अभी यहाँ पर जनरली एक फिगर दिया रहेगा और वो फिगर के बेस्ड जो भी कंसेप्ट हम लोग को समझ में आ रहा है वो कंसेप्ट हम लोग को वहां पर एक्सप्लेन करना है. करेक्ट. राइट. One more thing which I would like to add for notes is, अगर if you are being asked 4 points और आपने 6 पॉइंट भी लिख दिए उसमें, Right. so the marks will be given to the most significant points which are Right. there. Correct. But if you are simply wasting your time and writing 6 or 7 points, so it doesn't make any worth. कि अगर हम लोग को 4 पॉइंट ही लिखना है, 2 मार्क मिलने वाला है उसमें, तो जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है वही लिखिए. अगर हम लोग सिंपली पेपर भर रहे हैं कि हम लोग ने 2 मार्क के लिए भी 10 पॉइंट लिख दिए, तो एक्चुअली इट डजंट मेक एनी सेंस. हम लोग को क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है rather than the quantity. Right. Next type of question would be like write chemical reactions along with their equations. तो यहाँ पर एक इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा जिसमें फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट्स दिए रहेंगे, फिर आप लोग को रिएक्टेंट्स पहचानना करने हैं. करेक्ट. राइट. अभी इसमें सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग का 1 मार्क के लिए भी आया था, दैट वाज द नेम द केमिकल रिएक्शन. अभी ये 2 मार्क्स और 1 मार्क में डिफरेंस क्या है? 1 मार्क में सिंपली आया था नेम द केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का नाम लिख दो. लेकिन 2 मार्क्स में क्या है, इसमें हम लोग को कंप्लीट करना है केमिकल रिएक्शन और साथ में एक्सप्लेन भी करना है, तो इसलिए हम लोग को इसके लिए 2 मार्क्स मिलता है. करेक्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी कंप्लीट द फ्लो चार्ट. अभी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का अगर बुक देखें तो उसमें जो चैप्टर्स है वो मैक्सिमम चैप्टर्स बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक चैप्टर ले तो वहां पर फ्लो चार्ट बेस्ड कोई भी एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया रहेगा. तो यहाँ पर 4 ब्लैंक्स दिए रहेंगे फ्लो
वो ब्लैंक्स हम लोग को फिलअप करने हैं। तो एक ब्लैंक के लिए हम लोग को हाफ मार्क मिलने वाला है। ओके, नाउ लेट मी टेल इन दिस, अभी ब्लैंक में सिंपली हम लोग को फिल करना है, इसमें जो भी आंसर हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग को एक्सप्लेन नहीं करना है, मतलब हाफ मार्क का हम लोग का एक ब्लैंक रहेगा, तो हाफ मार्क के लिए सिंपली वी हैव टू फिल दैट ब्लैंक, वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट। राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी क्लैरिफाई द डिफरेंस। अभी हम लोग को यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंस हम लोग को लिखना था, लेकिन वो एक मार्क के लिए था। एक मार्क लेता एंड एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर था कि इसी चीज के ऊपर बताइए। जैसे उसमें मैंने एग्जांपल दिया कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो उनने बोला था कि इसके करेक्टिव लेंस का डिफरेंस क्या है, तो वही एक पॉइंट बताइए। वेयर एज फाइंड द डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्या होगा, अगर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पूछा तो उसमें क्या है, उसका पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या फर्क है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स दिए रहेंगे जिसके हम लोग को डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स लिखने हैं। तो ऑब्जेक्टिव में देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट जो हमको लिखना है, यहाँ पे इट शुड बी 4 पॉइंट्स, मिनिमम 4 पॉइंट्स, और वो भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और इफेक्ट्स। तो अभी यहाँ पर आपको एक टर्म दी जाएगी या फिर कंसेप्ट दिया जाएगा जिसके लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बायोलॉजी का एक एग्जांपल ले लें, फाइलम आर्थ्रोपोडा के हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो हम लोग जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने ऑब्जर्व किए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को यहाँ पर मेंशन करने हैं। यहाँ पर भी एटलीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें मेंशन करना जरूरी है। करेक्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिव साइंटिफिक रीजन। तो अभी यहाँ पर जैसे आप लोग को पता है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, यहाँ पर एक असर्शन दिया रहेगा, उसके लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजंस देना है। तो यहाँ पर भी हम लोग को मिनिमम 4 पॉइंट्स विच आर गोइंग टू एक्सप्लेन द असर्शन। करेक्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स। तो यहाँ पर एक टर्म दी जाएगी, कंसेप्ट दिया जाएगा और उसके हम लोग को एग्जांपल्स लिखने हैं। तो अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एग्जांपल्स बुक में दिए हैं वही एग्जांपल्स लिखने हैं। दिस इज गोइंग इन लाइन विद द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो कंसेप्ट है कि इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग, इट इज मोर अबाउट, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट साइंस इज लाइक डे टू डे ऑब्जर्वेशन। मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक मोटर, तो हम लोगों ने कहाँ देखा है इलेक्ट्रिक मोटर, तो हम लोग को देखना है, हमने फैन में भी देखा है इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब ये दिस इज मोर और ऑब्जर्वेशन। अभी जैसे अगर मैंने बोल दिया सोडियम, सोडियम कहाँ देखा है, हमने अपने किचन में देखा है सोडियम। तो इसमें सिलेबस ऐसा है कि आप जितना ऑब्जर्व करोगे डे टू डे में और वही एग्जाम्पल लिखोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। मतलब करेक्ट क्वेश्चन के लिए करेक्ट एग्जाम्पल देके आपने खुद का एग्जाम्पल दिया है, खुद जो ऑब्जर्व किया है, देन यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल की टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिए 2-3 वही एग्जाम्पल लिखने, यू कैन ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स। करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन 2. नाउ आई विल रिक्वेस्ट Colin sir to explain about question number 3. Thank you, Rahul. And moving on to question number 3. Question number 3 is for 15 marks. The student has to attempt 5 marks, 5 questions, जहाँ पे 7 सब questions दिए जाएंगे और वो student को 5 attempt करने हैं. The type of questions which we can expect in question number 3 are as follows. First is give explanation using the given statements. अभी यहाँ पे क्या है कि द स्टेटमेंट्स मिनिमम 6 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को और वो कोरिलेशन फाइंड आउट करना है मेन स्टूडेंट को 6 स्टेटमेंट्स में क्या रिलेशन है एंड देन ही इज सपोज टू एक्सप्लेन कि उसमें क्या रिलेशन है। सो इट्स नॉट जस्ट कि वो रिलेशन जो कुछ भी है उसको लिखना है, ये मेजर डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। वहाँ पे दे हैव टू फिल अप अ ब्लैंक या कुछ रिलेशन रहेगा वो एक्सप्लेन नहीं करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वो रिलेशन फाइंड आउट करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सजेस्ट रेमेडीज और मेजर्स। अभी ये सिंपल है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू गिव द नेसेसरी मेजर्स और रेमेडीज। करेक्ट। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। अभी यहाँ पे क्या है कि अ स्टूडेंट इज गिवन एन अनलेबल्ड डायग्राम। अभी एक अनलेबल्ड डायग्राम दिया जाता है, वो स्टूडेंट को उसको लेबलिंग करना है, प्रॉपर लेबलिंग अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। अभी अगेन यहाँ पे वही डिफरेंस है कि द स्टूडेंट का जो लेबलिंग का है उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है कि वो कंसेप्ट क्या है, उसको क्या बिल्डअप है, मे बी इट्स अ थर्मल पावर प्लांट जैसे है फॉर एग्जांपल,
उसका एक डायग्राम दिया जाएगा, तो उसको एक्सप्लेन भी करना है कि थर्मल पावर प्लांट क्या है क्या है। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग इन दिस। अभी लेबलिंग हम लोग जब कर रहे हैं तो हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया ह्यूमन आई में हम लोग ने कॉर्निया लेबल कर दिया, लेकिन कॉर्निया की स्पेलिंग हम लोग ने गलत लिख दी। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम लोग अपने Right. स्पेलिंग में भी ध्यान दें कि अगर हम लोग लेबलिंग कर रहे हैं, दो वी आर राइटिंग द करेक्ट टर्म बट वी शुड राइट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर इट। Absolutely right. Yeah. So moving on to the next one, which is complete the table and chart. Now over here an incomplete table दिया जाएगा and the student is supposed to complete it, and based on that he is again supposed to give the necessary information based on the flow chart. अभी इसमें क्या है कि जो कुछ भी blanks वो लोग भर रहे हैं उसको वो पूरा flow chart at the end पूरा explain करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करना है। नाउ इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क्स के लिए था, जहाँ पे मैंने बोला था सिर्फ ब्लैंक हमको भरना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन यही 3 मार्क्स के लिए आया तो ब्लैंक्स भरना भी है एंड एक्सप्लेन भी करना है। करेक्ट। The next type is explain with the help of examples. अभी एक कंसेप्ट दिया जाएगा, द स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन सपोज टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन दिया है तो उसको फर्स्ट वो केमिकल रिएक्शन बताना पड़ेगा, देन ही इज सपोज टू एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन। करेक्ट करेक्ट। अभी इसमें देखेंगे तो 1 मार्क के लिए भी ऐसा क्वेश्चन आया केमिकल रिएक्शन, 2 मार्क्स के लिए भी आया, 3 मार्क्स के लिए भी आया। अभी 1 मार्क में क्या था, हम लोग को सिंपली उसका नाम देना था। 2 मार्क में क्या था, आधा दिया था, कंप्लीट करके एक्सप्लेन करना था। अभी इसमें क्या है, सिर्फ बोल दिया दिस रिएक्ट्स विद दिस, तो हम लोग को पूरा रिएक्शन दिखा है और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। देन कम्स सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आए थे, करेक्ट, विच वर सिंपलर। अभी यहाँ पे जो 3 मार्क के लिए आएंगे विच वुड बी अ बिट डिफिकल्ट, हायर ऑर्डर के रहेंगे। हायर ऑर्डर। नाउ हायर ऑर्डर डजंट मीन कि हम लोग को मैथमेटिकल फॉर्म में हायर ऑर्डर होएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैथ्स का बड़ा बड़ा नंबर दे दिया कि 1000 डिवाइडेड बाय 999 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 10000, इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं। डिफिकल्टी लेवल का मतलब डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ साइंस, साइंस के टर्म में इसमें डिफिकल्टी आएगा। मतलब 2-3 फॉर्मूला को साथ में फ्यूज कर दिया। जैसे अगर बोल दिया पावर निकालो, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, लेकिन क्वेश्चन में वर्क का दिया ही नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से हम लोग वर्क निकालेंगे। हम लोग को चार्ज दिया है तो उससे हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे जाके हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे। उसमें भी वो लोग ट्विस्ट कर सकते हैं कि पावर हम लोग को HP में चाहिए या पावर हम लोग को किलोवाट में चाहिए, वैट में नहीं चाहिए, तो वो पूरा का पूरा कन्वर्जन हम लोग को करना पड़ेगा। सो दिस डिस्क्राइब्स द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द न्यूमेरिकल, नॉट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एग्जैक्टली। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो है कंप्लीट द डायग्राम। अभी द डायग्राम में देयर विल बी एन इनकम्प्लीट डायग्राम, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे कि एक सर्किट डायग्राम है या फिर एक फ्लो चार्ट है, फूड चेन है, जो इनकम्प्लीट दिया जाएगा या फिर उसमें कुछ करेक्शंस रहेंगे। जैसे अपना सर्किट है, वहां पे बैटरी का जो सिंबल है उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो गलत कनेक्ट किया जाएगा, या फिर वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन है वो गलत रहेगा। सो द स्टूडेंट इज सपोज टू रेक्टिफाई इट और उसके बाद ही सपोज टू एक्सप्लेन इट। करेक्ट। अभी इसमें गलती और भी क्या हो सकता है कि कनेक्शन, जैसे वोल्ट मीटर इट माइट बी कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन हमको मालूम है वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। बैटरी उल्टा लगाया हो सकता है कि प्लस का माइनस हो सकता है, माइनस का प्लस हो सकता है। अभी इसमें एमीटर भी उल्टा लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी सर्किट में उल्टा सीधा लगा के हम लोग को इतना फेयर आइडिया होना चाहिए, कंसेप्चुअली हम लोग इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हम लोग को पता होना चाहिए कि सर्किट प्रॉपर्ली कैसे अरेंज होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर्स। अभी इसमें क्या है, क्वेश्चन में एक फिगर दिया जाएगा, फिगर के ऊपर 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो द स्टूडेंट इज सपोज टू नो द कंसेप्ट बिहाइंड द फिगर व्हिच इज गिवन, और उसके बाद ही हैज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। 3 जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे इट विल बी बेस्ड ऑन द फिगर और उसको खाली वो अटेम्प्ट करना है नेसेसरी। उसको ये बहुत एक्चुअल में इजी है अगर उसको कंसेप्ट समझ में आया स्टूडेंट को, तो इजीली 3 मार्क्स इधर ही स्कोर हो जाते हैं। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। अभी इसमें नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे लॉ या स्टेटमेंट कुछ रहेगा या फिर थियरी कुछ रहेगा, वो पूछा जाता है। द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू राइट द लॉ फर्स्ट, उसका स्टेटमेंट, एंड देन एक्सप्लेन द लॉ। जैसे ओम्स लॉ का है तो वो पहले अपना स्टेटमेंट लिखेगा ओम्स लॉ का, एंड देन ही विल एक्सप्लेन द थिंग विद द फॉर्मूला।
राइट एंड गिविंग सम एग्जांपल्स कि कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं उसको। Correct. जैसे एक सर्किट बना दिया, उसमें लिख दिया करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा या रेजिस्टर के अक्रॉस रीडिंग आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लाइक गिविंग एग्जांपल्स, यू कैन आल्सो ड्रॉ बेसिक सर्किट्स अपना एग्जांपल देने के लिए। दैट इज नॉट नेसेसरी कि टेक्स्ट बुक में अगर सर्किट नहीं दिया है तो हम लोग बनाएंगे ही नहीं, लेकिन इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर कि मैं ये सर्किट बना के एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देन यू हैव टू ड्रॉ दैट सर्किट, सो दैट विल बी अ वैल्यू एडिशन थिंग इन योर Exactly. आंसर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें है कंप्लीट द पैराग्राफ। अभी इसमें क्या है कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा विच विल बी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और आउटसाइड द टेक्स्ट बुक, लेकिन कंसेप्ट टेक्स्ट बुक में ही रहेगा। Correct. एंड देयर विल बी 6 to 7 फिल इन द ब्लैंक्स मिनिमम, और उसके साथ ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। सो ऑल द स्टूडेंट हैज टू डू इज वो ऑप्शंस जो बरोबर है वो खाली ब्लैंक्स में फिलअप करना है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंसेप्ट, अगर आपका Correct. कंसेप्ट क्लियर है तो वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। करेक्ट। So finally that sums up question number 3. Moving on to question number 4. Now, talking about question number 4 is of 5 marks. Now let me segregate the types of questions which are included in the 5 marks. The first type of question is correct diagram and explain. अभी correct diagram हम लोग को 3 marks के लिए भी था, उसमें भी हम लोग को सिर्फ करेक्ट डायग्राम था, लेकिन इधर हमारे पास है करेक्ट डायग्राम एंड एक्सप्लेन। मतलब यहाँ पे हम लोग को वो छोटे छोटे सर्किट डायग्राम्स नहीं आएंगे, हम लोग को बड़े बड़े डायग्राम्स आ जाएंगे, जैसे ह्यूमन ईयर हो गया, ह्यूमन आई हो गया, ऐसे वाले डायग्राम हम लोग को आएंगे कि हमने क्या गलती की है, या हो सकता है हम लोग को करेक्शन ऑफ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया गलत दिखाया हो, हम लोग को इसमें कॉनकेव जहाँ पे लगता हो वहाँ पे कॉन्वेक्स लगाया हो, जहाँ पे कॉन्वेक्स लगता हो वहाँ पे कॉनकेव लगाया हो, ऐसे गलती करेंगे वो लोग डायग्राम में। हमको पहचानना है कि गलती कहाँ पे हुई है, अभी ये पहचान के हम लोग को एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा डायग्राम। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज इंक्लूडेड इज एक्सप्लेन विथ डायग्राम्स। मतलब क्या, एक क्वेश्चन दे दिया होगा जैसे बोलेंगे कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। अगर डीसी मोटर बोल दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात हम लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन में बोला ही नहीं एक्सप्लेन विथ डायग्राम, बट रिमेंबर इफ इट इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, हम लोग को उसमें डायग्राम ड्रॉ करना ही है। मतलब अगर डीसी मोटर बोला तो उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके नीचे उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पूरा डायग्राम उसका एक्सप्लेन करना है। सो 5 मार्क्स क्वेश्चन में आई वुड रिकमेंड यू कि कंपलसरी ड्रॉ अ डायग्राम, आई वुड से ड्रॉ अ लेबल नीट एंड लेबल डायग्राम। नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन। अभी क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन कैसे हो सकता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो हम लोग को क्लासिफाई करना है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, द इंटर कन्वर्टेबल, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है कि एक एनर्जी फॉर्म दूसरे एनर्जी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया, तो एक्सप्लेन और हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे फूड चेन एक्सप्लेन कर दिया हम लोग ने, पूरा का पूरा फूड चेन हम लोग ने बना दिया, उसके बाद उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। उसके बाद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आंसर बेस्ड ऑन गिवन पैराग्राफ एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग को 3 मार्क्स में भी था, जिसमें सर ने बोला हम लोग को 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन ऐसे टाइप में हम लोग को 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को पैराग्राफ में मिल जाएगा। जो 4th और 5th क्वेश्चन रहेगा ये लोग थोड़ा ट्विस्ट करके देंगे आप लोग को, मतलब क्या रहेगा पैराग्राफ से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें ट्विस्टेड रहेगा। जैसे अगर पैराग्राफ में हम लोग को ओम्स लॉ के बारे में बताया है, तो हम लोग को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, शायद उस पे सम बना दे, कोई न्यूमेरिकल बना दे, या तो ट्विस्ट करके कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो व्हाट विल हैपन। अगर केमिस्ट्री के इसमें आ गया तो जैसे अगर पैराग्राफ दिया हुआ है तो अगर ट्विस्ट करना है कि अगर मैंने ये सॉल्ट की जगह ये सॉल्ट यूज कर दिया, सो विल द रिजल्ट बी द सेम, तो ये हो गया हम लोग के लिए ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज प्रिपेयर कंसेप्चुअल चार्ट एंड एक्सप्लेन। ना अगेन दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग को जैसे फूड चेन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम पूछ सकते हैं, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन दिस, एंड हम लोग को पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू सिलेबस ऑफ आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ आवर 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अभी ऐसा हो सकता है कि आपके मन में और भी बहुत सारे डाउट हो, सो यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन बिलो, और हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक अवर वीडियो, हिट ऑन द लाइक बटन, डू शेयर अवर वीडियो, इस शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड इफ यू सब्सक्राइब अवर चैनल क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच आर इंक्लूडेड ऑन आवर चैनल। हमारे चैनल में जैसे चेंज इन सिलेबस ऑफ मैथ्स डिस्कस हुआ है, चेंज इन सिलेबस ऑफ सोशल स्टडीज डिस्कस हुआ है, अभी बहुत सारे वीडियोस आना और बाकी है, तो आपको डेली नोटिफिकेशंस चाहिए कि कौन से डेट पे कौन से टाइम पे वी आर कमिंग लाइव, सो डू क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू विल डायरेक्टली गेट द नोटिफिकेशन। इफ यू वांट टू नो अबाउट आवर बुक्स,
visit our nearest bookstores, or you can visit our website, that is www.targetpublications.org. You can also call us on the number that is 8879939712 with an extension can be 13, 14 or 15. So this is all about the thing. This is Nipun Bhatia. Colin, Rahul, So signing off, best of luck. all the best. all the best.